ہے دلوں کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اگر بیٹا فرما بردار نہیں نکلا، اگر بیٹا وفادار نہیں نکلا تو یہ بڑھاپے میں لاتے کھانے کا لائسنس ہے۔ اور میں نے بیٹیوں کو دیکھا ہے کہ جہاں لڑکے گھر سے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں، بیٹیاں پوری زندگی اپنے ماں باپ کو اپنے گھر بٹھا کر کے کھلاتی ہیں، کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں لاتی۔ آج ان کی پیدائش کے چہرے بگاڑے جاتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ گزر کے جا رہے تھے، گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اس گھر سے نور نکل رہا ہے۔ نبی نے فرمایا جاؤ پتہ لگاؤ، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے یا اس گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے۔ جس گھر میں بیٹی آتی ہے سب سے پہلے یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جس گھر میں بیٹی کی پرورش ہوتی ہے، بیٹی جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت، جب جوان ہو جاتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو جیسے اس کا قدم گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو جنتی بنا کے جاتے ہیں۔ ہمیشہ عورت کی حفاظت اللہ نے جوان مرد کے ذریعے فرمائی۔ جب وہ بچی ہوتی ہے تو باپ جوان ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر جوان ہوتا ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کی اولاد جوان ہوتی ہے۔ ہمیشہ عورت کی حفاظت اللہ نے جوان مرد کے ذریعے فرمائی۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری شریعت۔ تو پیارے مسلمانوں، مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو اپناؤ، نبی کے پیغام کو اپناؤ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر تم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اب ایک آخری بات اور میری تقریر ختم، اس پہ عمل کریے گا، اس پہ پیغام کو دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جائیے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے مجھے بیان کرنے کے قریب ہونے جا رہے ہیں۔ اب بیان سنیے گا، میں نے 10 منٹ آپ سے مانگے تھے کہ 10 منٹ آپ مجھے سن لو، آپ نے 1 گھنٹہ 50 منٹ سن لیا، یہ آپ کا احسان ہے۔ اب میری ایک آخری بات سن لیجئے۔ میرے آقا جب ماں کے شکم میں تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب میرے آقا کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ اداس بیٹھی ہوئی تھی، میرے آقا اپنی ماں کے پاس آئے۔ 6 سال کی عمر ہے میرے آقا کی، بہت غور سے سننا، 6 سال کی عمر ہے۔ حضرت آمنہ سے کہنے لگے امی اداس کیسے؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے بیٹا مجھے تمہارے والد کی یاد آئی۔ اپنے دادا سے کہ وہ ہم کو یثرب چلا جانے کا، تو حضرت عبد المطلب بولے کہ چلی جاؤ ساتھ میں ام ایمن کو لے جاؤ۔ 6 سال کی عمر ہے میرے آقا کی۔ جب حضرت آمنہ گئی قافلے کے ساتھ تو مقام ابوا میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے، قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہے۔ قافلہ ٹھہر گیا، قافلہ رک گیا، مگر کب تک؟ طبیعت میں کوئی سدھار نہیں ہوا، طبیعت میں کوئی سدھار ہونے کا نام نہیں۔ جب طبیعت دم پہ دم بگڑتی جا رہی ہے حضرت آمنہ کی، قافلے والوں نے کہا آمنہ ہمیں اجازت دے دو، ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے قافلے والے کہہ رہے ہیں ہمیں اور بھی کام ہے۔ تو جب حضرت آمنہ نے یہ سنا تو فرمایا جاؤ اور شوق سے چلے جاؤ، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ قافلہ چلا گیا، بظاہر کوئی مرد نہیں ہے، 6 سال کی عمر میرے آقا کی، ساتھ میں باندھی ام ایمن۔ میرے آقا کی والدہ پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے، گھڑی آئی جو سب پہ آنی ہے، وہ ٹائم آیا جو سب پہ آنا ہے، وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے۔ جب جا کنی کا عالم طاری ہوا حضرت آمنہ پر، ایک بات بتاؤ لکشمی پور والوں، جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کو سینے سے لگا کر کے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اولاد کو ڈھارس بندھاتے ہیں۔ کبھی چچا سینے سے لگا کے کہتا ہے مت رو میرے لال تیرا چچا موجود ہے، کبھی
ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी अजीजो अकरबा, दोस्तों अहबाब कहते हैं मत रुक, अभी हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे आका की रहमत पे कुर्बान जाओ। माँ का बाप का साया तो तभी सर से उठ गया जब माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठने वाला है। नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। आका ने अपनी माँ को सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया और अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत, मुझे अपनी माँ का सर दबाने दो, मुझे अपनी माँ की खिदमत करने दो। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानी की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना आंखें खोल के कहती मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। कहती है मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया। फिर हजरत आमिना कहती है मेरे बेटे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। बस जिक्राबाद और आमिना का जिक्र बाकी रहेगा। आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा। वह वलद तुम तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। हजरत आमिना ने नबी को गोद में लिया, प्यार किया और उसके बाद उम्मे ऐमन को देते हुए कहा उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मैं अपने बेटे को तुझे देके जा रही हूँ। मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती आका की माँ की आवाज रुक गई और नबी अपनी माँ का के जिस्म से लिपट करके फरमाते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब हजरत आमिना की आवाज नहीं आई। उन्हीं पथरीली वादियों में 6 साल की उम्र में मेरे आका ने, उन्हीं रेतीली वादियों में नबी ने अपनी माँ की कब्र बनाई। और जब माँ की तुरबत तैयार हो गई, उम्मे ऐमन कहती है जितना मैंने आका को अपनी माँ की तुरबत पे लिपट करके रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। आका अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके रो रहे थे, आका अपनी माँ की तुरबत से फूट फूट करके रो रहे थे। नौजवानों अगर माँ बाप जिंदा है तो कदर कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है, जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि आज वो माँ तुम्हें फोन करके पूछती है मेरे लाल कहाँ चले गए, आधी रात हो गई, आकर के घर पे सोते क्यों नहीं, बेटा नशे में मस्त है। कहता क्या माँ मुझे परेशान करती रहती है, क्या माँ मुझे फोन करके डिस्टर्ब करती रहती है, मेरे भी तो कुछ शौक और अरमान है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करता फिर रहा हूँ। याद रखो आज जिस माँ का फोन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, एक दिन आएगा कि ये फोन की घंटी तुम्हें सुनाई नहीं देगी, इस माँ की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगी, इस बाप की आवाज सुनाई नहीं देगी। उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी शख्सियतें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसे प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा आप लगाइए। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिंदा है वो अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कर ले तो अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक का इंतकाल हो गया है और एक मौजूद है तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। आज औलाद का हाल क्या हो गया, माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखती, माँ बाप बूढ़े हो गए, सर के बाल सफेद पड़ गए, दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए, जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया। औलाद जवानी के आलम में है,
बाप कोई बात कहता उसका उल्टा जवाब दिया जाता है। याद रखना नौजवानों, अगर माँ बाप ने बद्दुआ कर दी तो दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें तबाही से बचा दे। और माँ बाप दुआ कर दे तो अल्लाह दुकानों में भी बरकत देगा, मकानों में भी बरकत देगा, कारोबार में भी बरकत देगा। मैं बरेली शरीफ से आया, लोग मुझसे बोले हजरत हमारे कारोबार के लिए दुआ कर दो, हमारी दुकान के लिए दुआ कर दो। कोई कह रहा है हमारे लिए दुआ कर दो, बीमारी चल रही है, शिफा दवा फायदा नहीं दे रही। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा हम दुआ कराते तो फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। हम दुआ कराते तो हैं, दुआ लेते नहीं है। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे, अल्लाह उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता। नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। माँ बाप से दुआ कराओ, अपने माँ बाप के पास में जाओ, परेशान हो अंधेरे से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरे से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। आज ये माँ बाप के बारे में नई जनरेशन कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है। आज कई नौजवान ऐसे हमको भी मिले जो कहते मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। तो मैंने कहा कभी उनके हाथ की हथेली देख लिया कर। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई। तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं झेलता अपनी इस औलाद के लिए। आज वही औलाद जवान हुई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, खुद के कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम। माँ बाप है कि झोपड़ियों में रह करके पंखे से हवा करके अपनी गर्मी को दूर कर रहे हैं। माँ बाप है कि फटी हुई रजाई ओढ़ करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। खुद के बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। खुद के बच्चे सिवई खाए, माँ बाप बच्चों का चेहरा देखे कैसी दिन के लिए